محمد نبی رضی ہوتا ہے کہ اس کی جو بیٹھے ہوتی اس کی کھیلنے کے سیٹس یہ 14 آرڈر پہ بنے ہیں یا وداؤٹ آرڈر 14 تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ریوائز کریں جو میں نے پچھلی دفعہ جو سبق کی. میری تقریباً 30 سالہ تحقیقات کرنے کا تھا. 30 سالہ تحقیقات کرنے کا تھا. آپ اگر کوئی اس کی قدر نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ کفران نعمت کی بدترین اسٹیج ہے وہ آخری نہیں کرتا کہ اس کو مزید کچھ یا مزید اس کو کچھ ملے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کا جو سبق تھا جو لیسن تھا اس کی سمری یہ تھی کہ ایک دن میں آپ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں یہاں لوڈ اسپیکر پہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ لوڈ اسپیکر پہ بولنا چاہیے مشکل کام ہوتا ہے لیکن اتنا ضرور بتائیں کہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ جن جن دوستوں نے عزیزوں نے بھائیوں نے بہنوں نے اس پر کچھ کام کیا یعنی اس کی پریکٹس کی. میری بات اگر پریکٹس نہ کی تو میں آپ وہی چیز دوبارہ بتاؤں گا کہ جو کہ اس سے آگے گیا اس سے پیچھے دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتے. کیوں ریپیٹ کریں گے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ایک بات کو بار بار دہراتے رہو اور اسی سے اپنا کام چلائے. یہ کام چلو اس دربار پر نہیں. یہاں ہر ایسا نیا دور نہیں بنتے تھے اللہ کرے مرحلہ یہ شوق یاد دیا. اس لیے آپ میں سے اپنی اپنی مرضی سے جن جن دوستوں نے پہلے تو مجھے یہ بتایا کہ اس کی سمری کیا تھی اس کا خلاصہ کیا تھا جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا اس کی سمری آپ مجھے دیں. پیشے تو آپ دو تین دوست مل کر کوآرڈینیٹ کریں لیکن مجھے بتائیں کہ تھا کیا اس کی کیا ضرورت تھی اور اس کو ترتیب کیا رکھی گئی اور آپ نے پریکٹس میں ترتیب کیا کی اور پھر اس سے آپ کو ملا کیا. اگر آپ نے اس سے کچھ گین کیا پھر کوئی بات نہیں. اگر آپ اس کو پریکٹس نہیں کیا تو پھر پیری بھی فضول اور مریدی بھی فضول اور طالب علمی بھی فضول اور شاگردی بھی فضول اور وقت کا نقصان. کیا خیال؟ یعنی یہاں نہ میں پیر بننے کے لیے آتا ہوں نہ آپ کو صرف مرید بننے کے لیے آنا چاہیے. نہ میں استاد بننے کے لیے آتا ہوں نہ آپ کو شاگرد بننے کے لیے آنا چاہیے. ہاں پیری مزہ کرے گی مریدی مزہ کرے گی جب آپ پچھلے دن سے اگلے دن بہتر. استادی شاگردی مزہ کرے گی کہ آپ کی فنون میں اگر ترقی ہو رہی ہے تو پھر مزہ ہے. اگر نہیں ہو رہی تو اس کا اگر مجرم میں ہوں تو میں اپنے جرم کا اعتراف کروں گا. اگر آپ ہیں تو یا تو پھر بدل لیں پھر کا نکال. مجھے یاد ہے کہ ہم پیر صاحب گنگوشی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میرے ساتھ نے آ کر کہا کہ جی دعا کرے میں نماز پڑھوں. اس وقت غصے میں آ کے فرمایا دفاع ہو جاؤ روس چلے جاؤ وہاں تمہارے ایسے کافر رہے جو نماز پڑھنے کے لیے بھی دعائیں کراتے دعائیں دعا کرو میں نماز پڑھوں کبھی پڑھتے نہیں. اٹھو جاؤ نماز پڑھو. تمہیں اگر ہوتا ہے کہ دعا کرو تو میں نماز پڑھوں گا تو اس طرح یاد رکھیں کہ امام ربانی کے فرمان کے مطابق یہ مرید باشد نر باشد ایک مرید ہو اور نر. جی
محمد خلیل شوق پچھلی محفل کی سمری بتائیں. بیٹھ کر کھڑے ہو مراقبت اور پچھلی محفل مراقبہ کیا کیا تھا؟ ایک ہے مراقبہ یہ ٹھیک ہے. اچھا جی ہارون بیٹھے. تربیت آواز کے حوالے سے تربیت حواس ٹھیک ہے. آواز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 اقسام آواز کی ہوتی ہے. جو سوال میں کروں جس سے کروں وہ جواب دیں. جی تربیت حواس کی بات ہو رہی تھی اور تاریخ بتائیں گے کہ آواز کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 بتائیے نام دیجیے. سننا چکھنا چھونا سننا چکھنا چھونا محسوس کرنا محسوس کرنا دیکھنا. آپ کی بولیں. پہلی چھوڑی کی ضرورت کو تو آپ کی بولیں. یہ تو اب میں نہیں بتا سکتا صحیح کیونکہ آپ ان سب کے واسطے کا میں اپنی جان لڑا ہوں ٹھیک ہے جی اور ان کی یہ عادت کو 5 واسطے نام دیا ہے. جی سر اب انہوں نے کہا کہ تربیت آواز کی بات کی. اب اس کے علاوہ وہاں پر پچھلی بات میں کیا بات ہے؟ حواس کو تربیت حواس کے حوالے سے جناب نے مراقبہ تعلیم فرمایا تھا اور اس میں یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی حواس سنسی دیکھنے کی حص سنسی ہے اس پہ کسی بھی نقطے پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے اور اس نقطے جی اپنی کنسنٹریشن اس نقطے پہ فوکس کر کے اس کے بعد اس حد تک فوکس کرنی ہے کہ آپ کی جو حصے بصارت ہے وہ آپ کی آنکھیں بند ہو جائے اور حصے بصارت جو سی ہے معطل ہو جائے. اس کے بعد حضور سیکنڈ جو سی تھی اس مطلب حص جو سی ہے معطل ہونے کے بعد آپ سننے ساؤنڈ کے اسٹیج میں آ جائیں گے حضور. اور جی کیوں جناب میں نے کیا ترتیب دی تھی کہ کس ترتیب کیا رکھی ہے؟ میں نے ترتیب دی جی ٹھیک ہے. اچھا چل قرآن ٹھیک ہے. اس کے بعد حضور آپ اپنی جو سی ہے سننے کی سیکنڈ اسٹیج سننے میں آ جائیں گے اور سننے میں آپ چونکہ پہلی آپ کی حص معطل ہو چکی ہے تو سننے میں سب سے پہلے آپ کے نزدیک ترین جو چیزیں ہیں ان پہ غور کریں گے کون سی آواز جو سی آپ کے نزدیک ترین آ رہی ہے. آہستہ آہستہ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگس میں جتنی آوازیں ہیں ان پہ غور کرتے جائیں اور اس کے بعد آہستہ 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 آپ دور چلتے جائیں حتیٰ کہ آپ آپ یہ بتائیں کہ تربیت حواس میں آپ نے جب اس مراقبے پر عمل کیا تو آپ کو اپنی حص کون سی رائے؟ مجھے بالغ محسوس نہیں ہو سکتی لیکن یہ ہے حضور کہ میں آخر تک مطلب پہنچا حضور اور اس کے بعد جب میں نے اپنے مائنڈ پہ حضور فوکس کرنا چاہا تو حضور یعنی تھرڈ آئی کے اوپر حضور جناب نے فرمایا تھا حضور. بسم اللہ حضور. تربیت حواس میں کوئی تھرڈ آئی کی بات تھی؟ نہیں تربیت حواس میں نہیں چلیں گے. بسم اللہ بتائیں آپ نے تربیت حواس کا مراقبہ کیا تو آپ کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ جی سر. What are your feelings related to this meditation? بسم اللہ حضور. اس کے بعد اس سیکنڈ حص کے بعد حضور جب میں اس ذائقہ کی حص پہ حضور میں نے مطلب کنسنٹریٹ کیا حضور اور اس کے بعد حضور جب میں نے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر کچھ کیا ہوتا تو آپ مجھے بتانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جی ہاں جی سب سے پہلے دیکھنا پھر سننا. دیکھنا سننا موسٹلی جی جب آپ نے جب ایکسپیریمنٹ کیا تو آپ کو کیا محسوس ہوا کہ آپ کی فیلنگس کیا ہیں؟ جی جو لیول 1 کرایا تھا اسی میں موسٹلی جو ہے نیند آ جاتی ہے
लेवल क्या है? हाँ जी, एक तो था ना जो मैं किसी और लेवल का नहीं, जो पांचवा आवाज था वो उसके बाद हुई थी, वो जो सर्कल और ऊंची थी। सर्कल में कुछ जिक्र है तभी के वास्ते पहले में नहीं हजूर, अभी अभी तो कोई सर्कल तभी के वास्ते है नहीं हजूर, गलब हिस्स का जिक्र आता है अब हजूर एंड पे। धोखा ना हो गया आपको उलूम की तरह। मैं अगर मुकम्मल एक रीति के साथ आपका सिखा रहा हूँ ना, आपका मुकम्मल एक रीति के साथ सीखना चाहिए। अब और आप उसमें तेल डाल देना, दाल को पका के उसमें हवा डाल देना। जी तारिक, आपने जब हवास पर ट्रेनिंग की तो क्या रिजल्ट क्या है? पिछली बार में यार ठीक तो बहुत बड़ा फायदा है। फुल बेटे आपने बहुत अच्छी बात की थी, मुझे अपने एक्सपीरियंस पता है, आप अपना एक्सपीरियंस रिवाइज करें ताकि हाँ जनाब ने जैसा फरमाया था इसी तरह एक रात में बैठा हुआ तो तरकीब हवा से स्टार्ट किया। हाँ जब बस अभी बात तभी तो आवाज पर ही हो रही जी। तरकीब हवा स्टार्ट की तो जब छूने की स्टेज में मैं आया तो वहाँ मुझे नींद आ गई, लेकिन वो टॉयलेट जोन की नींद बेदारी और नींद उसका दरमियाना हिस्सा था, उसमें मुझे नींद आ गई। तो जनाब तशरीफ़ फरमा एक जगह पे साथ ही साथ है और जनाब हमायूं भाई को एक तावीज़ लिख कर देते हैं और नहीं वो तो कष्ट की नजर है ना, कष्ट की दुनिया में रहेगी। सिर्फ बताएं कि आवाज के वाले से आपकी हिस्स कौन से वाले में मेरे तरफ से कहा जाए आप पूरी पांचों आवाज में से किसी हिस्स को गालिब यदि लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज मतलब तो आप कौन सी किस तरीके से आप लिस्ट मतलब करेंगे? जी जब जनाब के कहने के मुताबिक जैसे जब मैं टच पे जाता हूँ तब जहाँ मैं जिक्र करता हूँ तो मुझे फील होता है कि वहाँ जिक्र चलना शुरू हो गया। जहाँ मैं दायरा घुमाता हूँ जिसम के अंदर वहाँ दायरे बनने शुरू हो जाते हैं। नहीं लेकिन जब आप टच पे जाते हैं तो वो तो सिर्फ बारे जब आप जाते हैं मैं सवाल कर रहा हूँ कि असल इम्पोर्टेंस किस चीज़ की कि आपने 5 आवाज पर मेहनत की, ठीक है, आपको अपने हिस्से गालिब कौन सी मिली? मेरे साथ खुशबू किया खुशबू वाली, माशाअल्लाह, ठीक है, यानी आपके इस हिस्से गालिब खुशबू वाली। तो जी असल आप बताइए जी कि आपकी हजूर मुझे जो है ना इसमें देखने के हवाले से ज़्यादा वाज़ेह है कि जैसे मैं मतलब आंखें बंद हैं उस क्या कहते हैं गनुदगी की हालत में या ड्राउजीनेस की हालत में ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सारा कुछ दिखाई दे रहा है हजूर। अच्छा ये आप विजुअल जी हजूर विजुअल के हवाले से नज़र आया। आप काइनेस्थेटिक, ठीक है, काइनेस्थेटिक आप विजुअल जी जी। बिलाल आप भी कुछ बहुत प्यारे कंडीशन बता रहे थे, आपने जब आवाज पर मेहनत की तो आपको क्या महसूस हुआ कि आपकी कौन सी हिस्सा आई? जी आवाज किसी हिस्स का मतलब कष्ट की दुनिया गई ना, यदि हिस्स के जरिए से आप कष्ट पैदा हो याद रखें। आज जो मैं पॉइंट आपको रोशन कर रहा हूँ वो ये है कि जिस अजीज की जो हिस्स गालिब होगी उस हिस्स के जरिए से वो रोने की दुनिया में दाखिल, वो हिस्स जो है वो उसकी सवारी है, उसका मीडियम है। डिस्कशन यही चल रही है आज मैं फिलहाल के पढ़ने से मिश्रण के साथ ही मैं पिछले सबक का रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ कि पिछला सबक एक बार दोबारा याद कर सकूँ। तो हम सवाल ये किया दोस्तों से कि जिस दोस्त ने प्रैक्टिस की उस प्रैक्टिस के नतीजे में कौन से दोस्त की कौन सी इस गाली मिली। तो इस वक्त हमारे खुद बेटे बोल रहे हैं और खुद बेटे बता रहे हैं कि मेरी खुशबू वाली काइनेस्थेटिक में आपको अफेक्टिव है ना, जी अफेक्टिव परफेक्ट काइनेस्थेटिक तो टच वाली होती है, लेकिन आपकी पहले अफेक्टिव है उसके बाद काइनेस्थेटिक। अच्छा जी तारिक आप तो थे
क्या खूबसूरत फार्मूला है, बेहतरी को नजर बस जान लीजिए। जी अमेश जी आप बताएं। इसको क्या कहते हैं, टेस्ट? जी टेस्ट टेस्ट। अब आप ये कर सकते हैं कि चखने की इस पर काम करें, और जितने भी आपकी की जिंदगी में होता ये है, यहाँ पर आपको एक कानून बता दूं कि बेसिकली जब आपके वो लोग जो स्टोर्ड है, क्या स्टोर्ड है या जज्ब शुदा है, इम्बाइब्ड है आपके इन हवास के अंदर, ठीक है? जब ये माजी की यादों को लिए हुए आपके हवास के अंदर दोबारा दाखिल होते हैं, सही, क्या कह रहा हूँ, दोबारा दाखिल होते हैं, लिए हुए दोबारा दाखिल होते हैं, तो आपको उस लेवल पर पहुंचा देते हैं जब ये वाकया ज़ोर पजीर हुआ। सही। दिस इज पास्ट लाइफ हीलिंग, दिस इज पास्ट लाइफ हीलिंग या पास्ट लाइफ इंप्रूवमेंट, और इसी को डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्मा भी कहेंगे। आप माजी में सफर करेंगे, वहां की इंटेंसिटीज को लेकर के आप इस दुनिया में आ जाएंगे, और इस दुनिया में लाकर उसकी इंटेंसिटी खत्म होती जाएगी, आप ट्रैवल बैक करते चले जाएंगे, यहाँ तक कि आपके सारे एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाएंगे, और फिर आप एक सरापा नूर, जब बच्चा पैदा होता है उस नूर के स्टेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है? यानी हकीकत नूरी जो इंसान की है, एक इन्फेंट की, बच्चे की, एक दूध पीते बच्चे की, आप उससे जी हजरत आप हमारे आपने इस पर कुछ काम किया? देखने के इससे शुरू किया, आस्ता आस्ता आँखें बंद, तो आँखें बंद होने के बाद पहले इसके के सुनने की हिस्से में जाता जिसम थोड़ा सा ऐसे, फिर आवाज़ें ये ऐसे क्या कोई देर हुआ, हिला, जाम हुआ, क्या जैसे कोई ये दिल की धड़कन बहुत आदमी तेज़ी से जब दौड़ के जाता है, तो दिल की धड़कन जो होती है वो दिल की धड़कन में जिस्म जो है वो दिल के साथ हिलता है, स्पाइरल, यानी पल्पिटेशन पैदा, ये यानी पहली विजन से, निगाह से, नजर की इससे दिल के अंदर पल्पिटेशन पैदा। आँखें बंद होने के बाद जिस वक्त सुनने की इससे काम किया, दूर की आवाज़ को मैं करीब से सुनने की कोशिश की, उस वक्त जायका ही थोड़ा एक मिठास से ये कोई भी चीज़ ये सुनने के इसके साथ ही जायका ज़ुबान के साथ, तो इससे पहले भी ये जो छूने वाली है इस पर कोई जिस्म हरकत करता, तो मुझे एक ऐसे सहरा और ऊँट की कैफियत ऐसे के सहारा तो सैलाब को देख रहा हूँ, महसूस हो रहा है कि सहरा में, हाँ याद रखें कभी मिक्स न करें, अगर आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं, चाक रहे हैं तो चाक रहे हैं, छू रहे हैं तो छू रहे हैं, यानी इसमें कभी भी मिक्स न करें, और इसको अलग अलग रखें। ये कैफियत उसके बाद जो दिन में या देखने में मुझे महसूस होती थी 2 दिन के, वो ऐसे कि मुझे ज़्यादातर ये ऑरेंज कलर या ये सफ़ेद भी है तो ये ऐसे ऑरेंज नजर आ रहा था मुझे, अपने तौर पे ये ऑरेंज कलर गालिब हो गया, महसूस हो रहा था कहीं मुझे ये खुदा ना खास्ता मेरी आँखों में पीछे में देखता हूँ, आँखों तो नहीं मेरी कहती वो ऐसी कैफियत ठीक है।
यानी इसका मतलब है कि इनके अंदर अल्लाह की इज्जत में कष्ट किस लगे रखी। कमेंट्स को आप बहुत से सुने और कमेंट्स पर आप मेहनत करें, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब फरमाते हैं कि जब मैंने ये औरत की कफियत पहले नजरी उस पर पैदा हुई या आखिर पांचों आवाज के बाद पैदा हुआ? बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। पांचों हवास जब तरबियत पा जाते हैं तो फिर आगे दुनिया कष्ट की शुरू होती है। ये जो कष्ट के बारे में बोंगे मारते रहते हैं लोग कि मैंने कष्ट में ये देखा वो देखा, वो इल्तिमास होता है, कष्ट नहीं होता। सही। इल्तिमास होता है, कष्ट नहीं होता। कष्ट ये है आवाज से निकल जाए। मैंने एक लफ्ज आपको दिया था कि आजकल पूरी दुनिया में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है आवाज से परे निकल जाने के लिए। अंग्रेजी में योगा की एक इस्तेलाह है, संस्कृत की एक इस्तेलाह है जो अंग्रेजों ने अडॉप्ट की हुई है। यूरोपियंस ने, अंग्रेजों को तो कहा गया ना, यूरोपीय स्कॉलर्स ने अडॉप्ट की हुई है। क्या आपके जहन में बस इस्तेलाह है? तो मैंने आपसे ये पूछा, ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये तो तरकीब हो गई एक लफ्ज। प्लीज थोड़ी आदत, जिससे पूछा जाए वही जवाब दे। जब आपसे पूछा जाएगा फिर आप चुप हो जाएंगे। जी बेटे, प्रत्याहार, ठीक। प्रत्याहार एक पूरा टॉपिक है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। इसको ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस भी आता है, ठीक है, लेकिन विड्रॉल ऑफ सेंसेस बेहतरीन इसका तर्जुमा है। तो याद रखें, कष्ट उस वक्त पैदा होगा, अब ये करना आज की बात को निहायत बारीक नींद से चलाएं ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट उन पॉइंट्स को हिट करें जिन पर मैं आपको लाना चाहता हूं। और उन लोगों को जिनको डायरिया ना लाने की आदत है, कुछ ना लिखने की आदत है, अपने आप को बहुत बड़ा समझने की आदत है, उनको इल्म होना चाहिए कि ये कुफरान नेमत है ना। कैसेट्स सुनो, टाइम नहीं निकालते, ना निकाले, नुकसान किसका? सही। नुकसान किसका? पांचों आवाज जब मुअत्तल होते हैं, ये साफ होते हैं, साफ होते हैं, तो फिर कष्ट की सूरत पैदा होती है। वो कष्ट मुख्तलिफ तरह का है। मसलन आरिफीन जो मेहनत करते हैं सुनने की इस पर, वो कायनात भर की आवाजें सुनते 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 उस आवाज तक पहुंच जाते हैं जब अल्लाह ने कहा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, वो अल्लाह की आवाज भी सुन लेते हैं और जो खुद आवाज अपनी कही थी ना, अल्लाह तू हमारा रब है, वो भी सुनते हैं। यानी अल्लाह की आवाज भी सुनते हैं और अपनी आवाज और कायनात की सारी आवाजें भी सुनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आवाज में सफर एक होता है तरबियत आवाज, और तरबियत आवाज के ज़िम्मे में आ गया आवाज में सफर। अब जितने लोगों ने इस पर मेहनत की वो उनको तो उनकी बात देखी कितनी सही निकली, और जिन्होंने मेहनत नहीं की वो बोंगे मार रहे। अपनी कुव्वत यादाश्त को इस्तेमाल करके तो जनाब ये हो गया, ये हो गया, पहला आवाज, पहली दूसरी तीसरी चौथी, आज तक के जाली बीरों ने क्या घर दूर से खफी अफा नफसी कालवी साथ होती है और तमाम जारी ये लोग, ठीक है। तो याद रखिए अपने आप को किसी धोखे में लगा, क्योंकि इससे आगे बड़े असबाब और आने वाले जिसकी बुनियाद के सबब। जी भाई जी, आपका ये तजुर्बा ये हुआ कि आपने फरमाया कि जो ही मैंने कोशिश शुरू की एक दूसरे हिस्से जायका पाने, ठीक है, माशाअल्लाह। और कोई दोस्त अपना तजुर्बा खुद बयान करना चाहेंगे? खुद बयान करने वाले दोस्त अब भैया क्या अच्छा आज भाई मुझे बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ आपकी बात सुनिए। नज़र जो है मखलूक की तो आँखों में
इससे बड़ी मुश्किल पेश आई शुरू में, लेकिन फिर जब ज़बरदस्ती उसको इसी तरह जारी रखा तो फिर जो है कुछ देर के बाद वो पलकें खुद खुद जो है बोझल हो गई। यहाँ जबरदस्ती का लफ्ज़ ड्रॉप कर दें, सही आइंदा से हम निकल सही ठीक है। अब अपने फरमा रहे हैं कि मैंने नजर के जरिए से देखना शुरू किया तो आंखों से पानी गिरना शुरू हुआ। ये जो आपने मशक शुरू कर दी ये थी तराटक की मशक, टिकटिकी बांध कर देखने की मशक, बहुत मुफीद है। लेकिन इस मरहले पर थोड़ी सी आप देखें, अगर आंसू निकल गया ठीक अच्छी बात है, क्योंकि आंसू जो है आंखों को साफ भी कर देते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं, अच्छी बात है, बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आप जब कभी भी जब या सख्ती का लफ्ज़ ड्रॉप करें, ठीक है। मैंने जो कहें कि दोबारा कोशिश का लफ्ज़ करते हैं, जब या सख्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल खास सारे दोस्ती आ रहे हैं, कोई चीज़ अपने आप को ठोसे नहीं, क्योंकि लेट एवरीथिंग कम ऑटोमेटिकली, ठीक है। हर चीज़ को ऑटोमेटिकली जैसा देखें, आप किसी दरख्त पर फूल जबरदस्ती नहीं ला सकते। कुदरत का कानून है कि जब मुहीत भी असर आएगा, माहौल भी असर आएगा, तो फ्रूटिशन खुद खुद हो जाए, फ्लावरिंग खुद खुद हो जाए। हाँ, उसके बाद सर खुद जो है वो जो सुनने की हिस्सा है उस तरफ ज़्यादा वो चला गया ध्यान खुद को। हाँ, उसमें वो झींगे की किस तरह की आवाज़ें जो हैं, हाँ, झींगे से बोलता है उस तरह की आवाज़ें आने लग पड़ी जैसे कोई साउंडिंग है। ये लिख का कहना है ऑटोमेटिकली मेरी साजिद भाई पानी बहुत पीछे अगला सच ऑटोमेटिकली मेरी जो हवास की जो जिहत थी वो एकदम से देखने से कन्वर्ट होके चली गई सुनने। यहाँ पर सुनने की तरफ। और झींगे की आवाज़ मुझे काम में आया और ये हर एक को सुनाई थी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर टच की है उस पर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है, जब फिर वो सांस की तरफ मुड़ती रही। हाँ, यानी टच की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं गई और ऑटोमेटिकली सांस का जो है उस तरफ वो ध्यान वो ज़्यादा आ गया। वो फिर उस तरीके के मुताबिक वो सांस जब लिया वो बस अभी तक पास में है वो चीज़। इसका मतलब है कि आवाज़ में से आपने सिर्फ दो आवाज़ पर मेहनत कर सके। आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि आप पांचों आवाज़ पर, ठीक है, पांचों आवाज़ मिलकर इस शख्सियत की तकमील करते हैं। कभी ये ना समझिएगा कि आपकी एक हिस्स आपको मुकम्मल तौर पर साहिब कश्फ या साहिब तसर्रुफ बनाए। बोल बेटे मैं क्या कह रहा हूँ, कभी ये ना समझिएगा कि आपको एक हिस्स जो है बाज़ का दो हिस्से मिलकर, बाज़ का तीन हिस्से मिलकर एक और बाज़ का पांचों हिस्से मिलकर, पांचों हिस्से मिलकर कंप्लीट होना है तो वो बंदा निहायत पावरफुल मुतसर है। एक इस पर ज्यादा फोकस करने की बजाय पहले पांचों आवाज पर मेहनत करें और थोड़ी थोड़ी मेहनत हर इस पर करें, ठीक। शाबाश। और आप में से कौन कौन सा स्टाफ की हाँ, हसन का और आबिद भाई का तजुर्बा जो है तकरीबन एक ही हो गया कि जो ही आंखें बंद हुई तो ऑटोमेटिकली मैं समाज की तरफ शिफ्ट। उसको तो आवाज़ें थी ना वो इस तरह तेज आवाज़ें आ रही थी, लेकिन उनको मैं क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, यानी वो मजमूआ था आवाज़ों और वो जब तेज हुई तो वो बिल्कुल मिक्स हो गई। उसके बाद तीसरा जो था वो छूने वाला उस तरफ में आ गया। लेकिन वो मैं इस तरह था कि जब वैसे ही मैं बैठता हूँ तो कुछ सफ़ेद चीज़ है और बहुत नरम सी है, यानी नर्म आगे के यानी पहले नजर फिर समान और उसके बाद टच छूने पर आपको नर्म चीज़ की तरफ तवज्जो ज़्यादा। वाइट सी चीज़ शायद नहीं दिखता और ये इस तरह
स्लो से है, इस पर मेरी काफ़ी रही। उसके बाद जो है ना वो जायका की तरफ आया, तो जायका भी मुझे महसूस हुआ। जायके में से ये नोट करें, मनीष जी आपको जायके में किस चीज़ का जायका महसूस हुआ था? ये चीज़ होती है उसका कि अब एक दवाई होती है हीनोटाइप, क्या हीमोग्लोबिन? जी तो अच्छा वो भी सब वहाँ की लोग होती है, वहाँ पे महसूस होती है। अच्छा, एक दवा का जायका महसूस हुआ, इसलिए आपको ज़हन में है कि कौन सा जायका महसूस मुझे हुआ? जायका इस तरह की जैसे कोई नमकीन चीज़ है, नमकीन खीर हो सकती है, इस तरह यानी उसके अंदर दूध और नमक का जायका, लेकिन वो ज़्यादा तेज नहीं। यहाँ मैं आपको नसीहत करूँगा कि जायके की जितनी किस्में, जब रंग आप देखें नजर का, ठीक है, और ये याद रखें कि नजर को सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर देखना काफी नहीं, आंखें बंद करके भी देखना है। और यहाँ मुराद आंखें बंद करके देखने से, ये मेडिटेशन से कहा था मैंने, ज़ाहिरी आवाज की तरबियत में आंखें बंद, आंखें खोल के देखो, जब बंद हो जाए तो फिर देखो कि कौन कौन से इमेजेस आपके सामने आ, ठीक है, और चेक करें ऑटोमेटिकली कौन कौन से इमेजेस आ, उसमें आप उन तमाम कलर्स का जो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं उनको, और फिर जब आप समाज की तरफ जाए तो जो आवाजें ऑटोमेटिकली आपको आना चाहिए आती है। अच्छा, आप उसमें खाने की जब टेस्ट की बात आएगी ना, तो आप हर वो टेस्ट को जो आपको जिंदगी में अच्छा लगा, आप कोशिश करें थोड़ी सी हल्की से, ज्यादा कोशिश नहीं करें कि उसको याद में लाए, लेकिन घसीट कर नहीं करना, सही, ऑटोमेटिकली आप यादों से निकल के वो आना शुरू हो जाएंगे और आपको उसका एहसास बाकायदा जुबान के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये याद रखें कि एक इल्म है जिसे कहते हैं साइकोमेट्री। साइकोमेट्री तरबियत आवाज जो है ये इंसान को साइकोमेट्री की तरफ ले जाती है। मसलन ये गिलास है और आपने देखा ये टच से ताल्लुक रखता है, अगर आपने आंखें बंद करके यूज को टच किया तो उसकी टच आपको फील हो रही है। अब टच में जब भी आपको फील आलम रूहानियत में या बाजार में भी आपने उसको पकड़ रखा और आपने आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए और इसी पर मुराकबा किया, तो ये गिलास जहाँ से आया, जिसने बनाया, जिसने बेचा, जिसने खरीदा, जिसने पानी डाला, जिसने इस्तेमाल किया, ये सारा कुछ इसकी हिस्ट्री आपके कश्फ में आ रही है। इसको कहते हैं साइकोमेट्री। सही, ये तरबियत हवास का जो अमल है, ये इतनी बड़ी चीज है कि इसको आप कहते हैं कश्फ अयानी, एंड ये कश्फ अयानी, यानी तरबियत आवाज का अमल आपको कश्फ अयानी की तरफ, तरबियत आवाज के जरिए से आप अपने मुर्शिद से राबिता कर सकते। सदियों पहले गुजरे हुआ आपने बुजुर्गों का मेरा हसी या फलां बुजुर्गों से मेरा फैज है, फलां बुजुर्गों से मेरा ताल्लुक है, तो वो किस तरह होता है? सही, ताल्लुक महसूस होता है, महसूस का ताल्लुक हिस्से मुराद पहुंच किसी न किसी हिस्से के जरिए से आप ट्रेवल करके वहां तक पहुंच जाते हैं। सही, जिस तरह एक अंग्रेज ने यही प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके, उसने 2 अंबिया पर मेहनत की। एक हमारे शहंशाह वाले साहब तस्वीर कि वो क्या स्थिति कि जिनकी जुबान से निकला वाला सीधा दिलों के अंदर वहाँ करता था। और हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम कि जो जिन्हें खतीबुल अंबिया कहते हैं, कि जब गुफ्तगू फरमाते थे तो परिंदे फ़ज़ाओं में उड़ जाते थे, लोग हज़ारों कतार रोना शुरू कर देते थे। इनमें क्या तासीर थी? उस अंग्रेज ने बाकायदा तौर पर
इस मेडिटेशन करके और समाप्त का मेडिटेशन करके उस मुकाम तक रसाई की और आले इस्लाम में शामिल हो गए। इन दोनों अंबिया की आवाज़ें सुनी का यकीनन अल्लाह के सच्चे। तो तरबियत की आवाज़ पर मैं इसलिए ज़्यादा जोर दूँ। और अब नेक्स्ट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, तरबियत आवाज़ एक है महदूद, क्या आपको पता है कि मैं कहाँ बैठा, और दूसरा ये है कि आप विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, आप सेंसेस से बाहर निकल गए, प्रत्याहार की स्टेज पे चले गए, और फिर उस वक्त आप ट्रांसफर ऑफ कॉन्शियसनेस कर सकेंगे, यानी अपने शऊर को शिफ्ट कर सकेंगे। ठीक है, यानी आप जहां हैं, जहां सोच में हैं, वहां होंगे, यहां नहीं। ठीक है, यानी एक ये